بلکہ غرور کرتے ہیں انہم مہتدون، وہی لوگ صحیح ہیں، وہی لوگ سیدھی راہوں پہ جا رہے ہیں۔ بولو آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ آج ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ثابت ہو رہا ہے؟ بالکل رب ذوالجلال کی قسم ہے، نقشہ آپ کے ذہنوں میں ابھر کے آ رہا ہوگا، اور ہمارے وہ بھائی جو اس طرح سے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں ان کے ذہنوں میں قرآن سن کر کے پوری باتیں ان فقیہان حرم کی اور ان پیران خانقاہ کی ایک ایک باتیں ان کے ذہنوں میں ابھر رہی ہوں گی۔ تو یہ ہے میرے عزیز اولیاء اللہ، ایک ہیں اولیاء الرحمن اور ایک ہیں اولیاء الشیطان، ایک ہے اولیاء الرحمن اور ایک ہے اولیاء الشیطان۔ اولیاء الرحمن کی پہچان کیا ہے، اولیاء الشیطان کی پہچان کیا ہے، یہ بھی سن لو۔ اولیاء الرحمن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے، سب سے بڑی پہچان یہ، سب سے بڑی پہچان۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں، اور جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے کان ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم اکیلے تنہا امت تھے، اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک۔ یا اللہ اور بھی تعریف کے کلمات ہو سکتے تھے، اے پاک پروردگار حمد و ستائش کے اور بھی الفاظ ہو سکتے تھے، ابراہیم کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ رب نے فرمایا ارے شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلاظت ہے، اتنی بڑی گندگی ہے کہ انسان اس کے ہوتے ہوئے ولی تو ولی ہے حقیقی طور پر، اور ولی تو ولی ہے، وہ جو ہے اللہ کا ادنا سا بندہ بھی نہیں، بلکہ اللہ کا جو ہے ذرہ بھی بندہ بننے کے لیے اس کے اندر کوئی وہی نہیں ہوتی ہے، طاقت ہی نہیں ہوتی۔ شرک اتنا مشرک ولی نہیں ہوتا ہے، مشرک ولی۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جگہ جگہ ہر جگہ یہی فرمایا ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ تو سنو، ولی جو ہوتا ہے نبی مشرک نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ولی بھی مشرک نہیں ہوتا ہے، ولی بھی مشرک، ہاں سنو۔ اور اسی طرح ولی جو ہوتا ہے وہ متبع سنت ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کے سنتوں کا پیروکار ہوتا ہے، وہ بدعتی نہیں ہوتا، بدعقیدہ نہیں ہوتا، بدعت نہیں کرتا، بدعتوں کی ایجاد نہیں کرتا۔ ہمارے حکیم الامت سے پوچھو کہ حضرت یہ جو آپ نے 12 ولایت کی قسمیں بتلائی ہیں، قطب، اقطاب، نجبہ، یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کا حوالہ ہے، اس میں کس روایت کا حوالہ ہے، اور نبی کی کس سنت کے اندر سے یہ باتیں تم نے نکالی؟ یہ ہو تم فقیہ حنفی، یہ ہے فقاہت۔ سنو، اسی طرح سے اللہ کے جو ولی ہیں وہ حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ ہے ولایت کی پہچان، یہ ہے ولی کی پہچان۔ اب بتلاؤ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر 1 سے پوچھتا ہوں میں، نمبر 1 اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو، اگر تم اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو غیب داں، کسی کو حاضر و ناظر، اللہ کے سوا کسی کو مدد پہنچا، اللہ کے سوا اللہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہیں کر رہے ہو، اپنے اپنے گریبانوں میں سوچو اور غور کرو، تو بتاؤ کیا تم اللہ کے ساتھ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو کہ کہیں تم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہے ہو، اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا مشکل کشا تو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو سمجھو تم اللہ کے کیا ہو؟ ولی ہو، اللہ کے ولی ہو۔ اور بدعتیں گڑھ کر شرکیہ باتوں پر عمل کر کے کوئی شخص ولایت حاصل کر سکتا؟ قرآن کا فیصلہ، رب کے فرمان کا فیصلہ اور حکیم الاحناف کا بھی فیصلہ، حکیم الاحناف کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ مگر افسوس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آئیے اب ذرا دل تھام کے بیٹھتے ہیں تھوڑی سی اس تشریح کے بعد۔ اب اس کے برعکس آپ سمجھ لیں اولیاء الشیطان کی پہچان کیا ہے۔ اولیاء الشیطان کی پہچان یہی ہے کہ جو شرک کریں، جو بدعتیں ایجاد کریں، بدعتوں کے اوپر عمل کریں، بدعتیں گڑھیں، خرافات پھیلائیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ اولیاء الشیطان ہیں۔ اب آئیو، انصاف کا میں طلبگار ہوں۔ قرآن سے 2 کیٹیگری اولیاء کی ہم نے بتلائی ہے، ایک اولیاء الرحمن کی اور ایک اولیاء الشیطان کی۔ ان میں کس زمرے میں آنے والے جن بزرگوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، کس زمرے میں رکھنا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑوں گا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات بھی کہی جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ذمہ داری سے کہی جائے گی۔ دنیا کے تمام صوفیوں،
तमाम ख्वाजाओं और ख्वाजा नुमा मौलवियों सबको मेरा ये चैलेंज है कि अगर जर्रा बराबर भी गैरत ईमानी हैं तो ए मौलवियों, ए मुफ्तियों, ए खानकाहों में बैठे हुए सूफियों, सज्जादा नशीनों और ए उनके तलबे चाटने वालों, ए उनकी बुजुर्गियत के डंके पीटने वालों, तुम्हारी जेबों से वो नोटें उड़ा उड़ा के तुम्हें फकीर कर रहा है और तुम उसके तलबे चाट रहे हो और उनके जुब्बे कुब्बे के ऊपर निसार हो रहे हो। तुम जरा इन किताबों को पढ़ो और हमें बतलाओ कि आखिर दुनिया के अंदर ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये शिर्क क्यों हो रहा है, ये बिदअतें क्यों फैलाई जा रही हैं, क्यों अकीदे तौहीद और सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता है। मैं सिर्फ अकीदे की बात करूंगा, किसी मसले मसाइल की बात इंशाअल्लाह यहां नहीं होगी, सिर्फ अकीदे की बात होगी इंशाअल्लाह। और सुनो, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा इंशाअल्लाह, सिर्फ तुमसे पूछूंगा कि ऐसे ईमान और अकीदे का आदमी, ऐसा ईमान और अकीदा रखने वाला भला क्या विलायत के दर्जे पर फाइज हो सकता? मैं सिर्फ आपसे फैसला लूंगा। और क्या वो वली हो सकता है? अब आओ जरा मैं जरा दिल थाम के बैठो, मेरी बारी आई वाला मतलब है। अब मैं जरा सा आपके सामने हकीकतें खोल खोल के रखता हूँ, बताता हूँ आपको विलायत की सीढ़ियों पर जिन लोगों को इन्होंने पहुंचाया हुआ है। ये देखें, आप सबको मालूम है कि अहनाफ के सबसे बहुत बड़े पीर और मुर्शिद शेख फरीदुद्दीन मोहम्मद बिन इब्राहिम अत्तार, जिनकी वफात 677 हिजरी में हुई है। 600 शेख फरीदुद्दीन उनका नाम है। ये कहते हैं, इनकी किताब है तज़किरतुल औलिया। कौन सी किताब है? तज़किरतुल औलिया। उर्दू के अंदर बाब नंबर 14 और सफ़ा नंबर 107। अर्श की हकीकत के मुताल्लिक किसी ने आपसे यानी बायजीद बुस्तामी से सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, अर्श तो मैं खुद हूं, अर्श तो मैं खुद हूं। फिर कुर्सी के मुताल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया कि कुर्सी भी मैं खुद हूं। फिर कलम के मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कलम भी मैं ही हूं। अच्छा, अब ये उसके बाद पूछने वाले ने कहा कि अल्लाह ताला के तो और भी बहुत से मुकर्रब बंदे हैं, मसलन हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, तो इनके खाने में क्या है भाई? तो कहने लगे इस पर भी शेख ये ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने क्या कहा? फरमाया कि वो भी मैं ही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। इब्राहिम भी मैं ही हूँ, मूसा भी मैं ही हूँ, ईसा भी मैं ही हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। हाँ, ये अहनाफ के बहुत बड़े शहबाज कलंदर हैं, ये बहुत बड़े पीर और मुर्शिद हैं। तज़किरतुल औलिया उर्दू बाब नंबर 14 और सफ़ा नंबर 107। और सुनो, शेख फरीदुद्दीन अत्तार अपनी इस किताब के अंदर लिखते हैं कि बायजीद बुस्तामी की हकीकत क्या है। कहते हैं आप बहुत बड़े औलिया और मशाइख एज़ाम में से हैं, रियादत व इबादत के जरिए कुर्ब इलाही हासिल किया। हजरत जुनैद बगदादी का कौल है कि हजरत बायजीद को औलिया में वो मकाम हासिल है जो हजरत जिब्रील को मलाइका में हासिल है। इतने बड़े मकाम पर हजरत बायजीद बुस्तामी ये हैं। और ये बायजीद बुस्तामी कौन है मालूम है? ये कट्टरपंथी हनफी थे। ये कौन है? ये बायजीद बुस्तामी हनफी थे। तो ये बुजुर्गान औलियाए अहनाफ हैं। कौन है ये? अहनाफ के औलिया में से एक वली का तज़किरा ये हो रहा है। और हजरत बायजीद से पूछा गया क्या तमाम मखलूक क़यामत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होगी? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि मैं कसमिया कहता हूँ कि मेरे आलम के नीचे यानी मेरे झंडे के नीचे मखलूक के अलावा अंबियाए कराम भी होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये हैं औलियाए अहनाफ जिनके झंडे के नीचे हमा शुमा क्या अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी आगे पनाह लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मकामात सूफिया सफ़ा नंबर 100 के अंदर मौजूद है कि ये बहुत पक्के हनफी थे। आपका पूरा नाम अबू यजीद तैफूर इब्न ईसा बुस्तामी है। आपके मुफस्सल हालात और वाक़यात तज़किरतुल औलिया बाब नंबर 14 के अंदर मौजूद हैं। और ये कश्फुल महजूब ये मेरे पास मौजूद है। सैयदी इसमें लिखा हुआ है हजरत सैयद अली मखदूम हजवेरी दातागंज हजवेरी की यह किताब है कश्फुल महजूब। इसके अंदर भी इनका वाक़या जिक्र है और इसके अंदर भी मौजूद है। सफ़ा नंबर 164 के अंदर इसके अंदर देखें, सफ़ा नंबर 164 दातागंज हजवेरी ने भी इनको बयान किया है। और कहते हैं दातागंज हजवेरी की यह किताब है और तर्जमा फारसी में तर्जमा करने वाले अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोइनुद्दीन नईमी। और कौन सा बुक डिपो है भाई? ये है जनाब अली नूरी बुक डिपो लाहौर।
नूरी बुक डिपो है कि नारी बुक डिपो है, अलमुहिम समझो। कहते हैं शेख हजवेरी कहते हैं, कौन हजवेरी है ये पता है कहाँ है ये? बोलो पाकिस्तान के भाइयों, तुम्हें पता है? लाहौरियों तुम्हें बताओ, ये तुम्हारे लाहौर के कुतुब हैं ये अगर चले जाएं तो पूरा लाहौर ही डूब जाएगा। एक जमाने में लाहौर में तूफान भी आया था लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। सुनो, कहते हैं कि अइम्मे तरीक़त में से हैं मारिफतो मोहब्बत के आसमान हजरत अबू यजीद तैफूर इब्ने ईसा बुस्तामी रदियल्लाहु अन्हु हैं। ये नबूवत का दावा करने वाला दातागंज हजवेरी के नजदीक कौन है? ये वलायत के कहते हैं तमाम मशाइख में जलूलुल कदर हैं, इनका हाल सब में बहुत रफी है और उनकी शान बहुत बड़ी है। यहाँ तक कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अबू यजीद मिन्ना बेमंजिलत जिब्रीला मिनल मलाइका। सूफियाए कराम में अबू यजीद की शान ऐसी है जैसे फरिश्तों में जिब्रील की शान है। ये बा यजीद बुस्तामी, और जाहिर है जिसकी इतनी शान हो उसके झंडे के नीचे नबी ना आए, उसके झंडे के नीचे ईसा ना आए, मूसा ना आए तो हमा शुमा क्या गिनती है भाई? बोलो, ये औलियाए हनाफ हैं। और सुनो, औज़ु बिल्लाह, ये इनका एक दफा ये हज करने के लिए गए। सुनो, ये वाक़या आया है तो बता देता हूं, बात लंबी। कहते हैं कि पहली मर्तबा जब मैं मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ, सफा नंबर 166, और झूठ बोलने वाले पर लानत, झूठ बोलने वाले पर कहते ना झूठ आज नहीं बन रही है बेटा लोगों की, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, नहीं बन रही है। जब मैं पहली दफा मक्का में हाजिर हुआ हज करने के लिए तो सिर्फ खाने मुफरद यानी खाली मकान था। खाने मुफरद यानी तन्हा मकान था। काबा को क्या कह रहे हैं हजरत? खाली मकान था। सुनो, देखा मैंने, गुमान किया कि हज मकबूल नहीं। बताओ वहां और भी कुछ नजर आता है? अब झट से ये बिदती लोग, हनफी बिदती कहेंगे अरे तुमको क्या नजर आए, तुमको क्या नजर आएगा? एक मौलवी ने हमारे पास शेर भेजा है, मैं लाया हूं, वो बताऊंगा। नूर को ही नूर नजर आता है, लिखा है मेरे रद में उसने अशार लिखे, तो मैंने अपने दोस्त के जरिए से उसका जवाब तलब किया, क्योंकि वो शायर हैं, मैं शायर नहीं, तो उन्होंने उसका रद लिखा। और जब मैंने वो रद पढ़ा तो मुझे मजा नहीं आया, अल्लाह की कसम। तो मैं हाइल से 11:30 बजे निकला एयरपोर्ट पर। मैंने कहा यार शायर नहीं हूं, खुद ही तबा आजमाई करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे अशार आए हैं। यहां से लेकर जद्दे तक मैंने तकरीबन 16-17 अशार कह दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं अभी सुनाऊंगा, अगर भूल जाऊंगा तो वो सुन लेना, याद करके सुनना, मुतालबा कर लेना, वरना पछताओगे बहरहाल। ये मेरी शायरी है, ये भी देखना मैं शायर नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी पहली दफा हाजिर हुआ तो वहां पर मैंने समझा कि हज मकबूल नहीं है, क्योंकि इस किस्म के बकसरत पत्थर मैंने देखे हैं। हाय, काबा की तौहीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो बोलो। उलमाए अहनाफ, मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ पत्थर देखे। कहते हैं दूसरी मर्तबा हाजिर हुआ तो खाने काबा को भी देखा, खाने काबा को भी देखा और साहबे खाना को भी देखा। औज़ु बिल्लाह। सुनो, हमारे मौलवी जो है ना, ये टुटपुजिए, इनकी तलवे चाटने वाले, कहते हैं क्या क्या भाई वली हैं, देख लेंगे। बोलो, पहले मैंने इसीलिए पहले इनका अकीदा बतलाया है। हजरत ही अर्श हैं, हजरत ही कुर्सी हैं, हजरत ही कलम हैं, हजरत ही मूसा हैं, हजरत ही ईसा हैं, हजरत ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ऐसा आदमी वली हो सकता? बोलो। तुम कहते हो कादियानी काफिर है, वही क्यों काफिर है? तुम चोरी करके शाह बने फिरो, शाह के लकब लगा के चोरो, अपने आप बोलेंगे शाह, फलाने शाह, ठकाने शाह। मैं उन शाहों की बात नहीं कर रहा हूं बेचारे जो ईमानदार हैं। वो भाई एक दफा मैंने इसे कह दिया फलाने बटेर शाह, तोते शाह, फलाने शाह। हमारे एक भाई नाराज हो गए, दूसरे भाई खादिम हुसैन वहाँ के हैं सियालकोट के, वो हमारे पास पकड़ के उनको लाए, बोले आपने इनको क्यों कह दिया फलाने शाह, ये आपकी इनकी तौहीन के। मैंने कहा भाई आप सैयद हो, पाकिस्तान में सैयदों को शाह कहा जाता है, तो मेरा मकसद ये नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह, ये लोगों ने नाम रखे। कहते हैं खाने काबा को भी देखा, साहब मैंने ख्याल किया कि अभी हकीकत तौहीद से दूर हूँ, इसका पेट अल्लाह को भी देख के नहीं भरा। कह रहा अभी हकीकत तौहीद से दूर हूँ
اور جب تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو سب